Today I will discuss about ecological pyramid. In an ecosystem, all the consumers, producers, graphically represented, and it shows the pyramidal shape, which is known as the ecological pyramid. In an ecosystem, all the members in the trophic level, which are graphically represented, this is known as ecological pyramid. Pyramid are different types: pyramid of number, pyramid of energy, and pyramid of biomass. Pyramid of number, pyramid of energy, and pyramid of biomass. Okay, so these are three types of ecological pyramid. The graphical representation of the organism which are representing in the each and every trophic level in an ecosystem is known as ecological pyramid. Ecological pyramid shows the structure of organism and their status in an ecosystem. Ecological pyramid of biomass in case of the sea is generally inverted, because the number of biomass, the amount of the producers or number of producers is less than the number of consumers. That's why the pyramid of biomass in the sea is generally inverted. But in case of grassland ecosystem, it is generally upright. Okay. Next one, ecological succession. The sequential, gradual, and predictable changes in the species composition in an area are called ecological succession. Ecological succession, that means in a particular area where the no type of vegetation occurs earlier, and then that means gradually it transforms into a climax vegetation. This is known as ecological succession. Ecological succession are two types. One is primary succession and another is secondary succession. In case of primary succession, that means no such type of the vegetation occurs in the particular area. There are example bare rock and water point, etc., where no type of vegetation occur earlier, but slowly the vegetation developed in the particular area. Now secondary succession, here earlier this area was occupied by the vegetation, but due to natural calamity, sudden natural calamity, all the vegetation or all the forest area that is buried underground or damaged, destructed by means of the natural calamity, and again it is that means development of the climax vegetation takes place. But in case of the primary succession, it takes too much time, near about 1000 years. But in case of secondary succession, it takes less time, near about 100 years. Near about 100 years. Okay. Now we have to discuss about that means nutrient cycle. What is nutrient cycle? What is nutrient cycle? Nutrient cycle, the movement of the nutrients and elements through the various components, biotic or abiotic, of an ecosystem is called nutrient cycle or a biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle means the cyclic pathway of key element, cyclic pathway of the key element like carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, potassium, nitrogen, phosphorus, etc. through the physical and biological world is called biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle are different types, that is gaseous cycle as well as the sedimentary cycle. Gaseous cycle, that means carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle, etc. And sedimentary cycle is sulfur cycle and phosphorus cycle. Now another definition you have to remember, that is what do you mean by standing state? Standing state. What do you mean by standing state? Hello? 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 Yes, sir. What do you mean by standing state? Standing state, the total amount of nutrient like carbon, phosphorus, and calcium present in the soil in any time is called standing state. ये सब पहले भी डिस्कस हो चुका है, but
कोई रेस्पॉन्स नहीं आप लोगों से। क्लास भी आज बहुत क्लास याद नहीं है क्या? बहुत को क्लास का याद नहीं, जो आज छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी है, ठीक है? कल छुट्टी, हॉलीडे कल है, आज नहीं है। स्टूडेंट्स आज छुट्टी मना रहे हैं। मंडे से आप स्कूल में क्लास होगा, दैट मीन्स पहले पास्ट प्रैक्टिस जैसे हम लोग क्लास लेते थे उस हिसाब से ही क्लास होगा। स्कूल से ऑनलाइन क्लास होगा, दैट मीन्स वेब कैमरा के साथ ही बोर्ड यूज होगा, सब चीज यूज होगा। मंडे से सबको बोल दीजिएगा, ठीक है? Yes, कौन है? sir. रुचि, रुचि है ना? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, सबको बोल दीजिएगा उस दिन मंडे से। दैट मीन्स अभी तो घर से लिया जा रहा है, तो मंडे से हम लोग स्कूल से लेंगे। और जो व्हाइट बोर्ड यूज करते थे या डस्टर या आप जो भी है मार्कर पेन यूज करते तो उस हिसाब से होगा क्लास। ये रिवीजन वर्क भी होगा। 12 क्लास में तो मेरा सिलेबस लगभग आप लोग का सिलेबस फिनिश हो गया, लगभग क्या पूरा फिनिश ही हो गया, तो रिवीजन चल रहा है। इकोसिस्टम ये चैप्टर जो है रिवीजन हो रहा है, तो नेचुरली आप बोल दीजिएगा मंडे से एकदम। जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर टर्म 2 का कौन है? हेलो, फर्स्ट चैप्टर, which is the first chapter of the term 2? So chapter 8. चैप्टर 8 जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है ना? Yes, sir. हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस चैप्टर से शुरू होगा, ठीक है? तो उस चैप्टर से शुरू होगा तो आपको फिर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर भी है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वो चैप्टर है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, ये तो इकोसिस्टम वाला ये सब तो हो गया फिनिश। तो नेचुरली स्टैंडिंग स्टेट का डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आता है, द टोटल अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल in any time is called standing state. The total amount of nutrients like carbon, phosphorus and calcium present in the soil in any time is called the standing state. और एक डेफिनेशन मैंने कहा था उस दिन, स्टैंडिंग क्रॉप। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप का भी डेफिनेशन उस दिन मैंने बताया था। ये दोनों डेफिनेशन आता भी है। अच्छा, गैसियस साइकिल में आपका सिलेबस में है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल 11 में, बट आपको कार्बन साइकिल पढ़ना है। कार्बन साइकिल में मेनली कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है। कार्बन कॉन्स्टिट्यूट, याद रखोगे, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% of dry weight of an organism. 71% of the carbon is found dissolved in oceans. 71% carbon is dissolved in the ocean, which is responsible for regulation in atmosphere. कितना percent? 71% carbon is dissolved in the ocean and regulate the atmosphere. Next one, the carbon cycle occurs through the atmosphere, ocean, as well as the living and dead organism. आप सोच रहे हैं जो कार्बन साइकिल का साथ डेड ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है? कहां से रिलेशन है बोलिए तो? कार्बन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, टू वाइटल फेनोमेनन। हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एक ना एक दिन हम लोग को तो डेथ होना है लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेथ के बाद जब नेचुरली डिकम्पोज्ड होता है, और मान लीजिए अगर मान लीजिए अर्थक्वेक होता है और नेचुरल कैलामिटी बुरीड अंडरग्राउंड, उस समय कंप्रेस्ड होकर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कोल बनता है, ऑयल बनता है, पेट्रोलियम बनता है, उसके बाद बर्निंग होता है। बर्निंग होकर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साइकिलिक पाथवे जो होता है, चाहे लिविंग सिस्टम हो चाहे डेड ऑर्गेनिज्म हो, नेचुरली क्या होता है? कोल पेट्रोलियम का सोर्स होता है, और कोल पेट्रोलियम जब ये होता है, दैट मीन बर्निंग होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ए नेक्स्ट पॉइंट यू विल रिमेंबर, इट इज एस्टिमेटेड that 4 into 10 to the power 13 kg, it is estimated that 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed. 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed in the biosphere. कितना kg? 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed in the
बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली, एक साल में फोटोसिंथेटिकली 4 into 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड। ये याद रखने का है, एक नंबर क्वेश्चन आता है, 4 into 10⁻13 kg of carbon is fixed in the biosphere through the photosynthesis annually. Okay, carbon is returned to the atmosphere as CO2 by animals and plants through respiration and activates the decomposers. Okay, some amount of fixed carbon is lost as sediments and removed from circulation. Burning of wood, forest fire, volcanic activities, combustion of organic matter and fossil fuels are some of the essential sources of releasing of carbon dioxide. फॉरेस्ट फायर जो होता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, वोल्केनिक एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन some essential sources releasing carbon dioxide into the atmosphere. Human activities like deforestation, vehicular burning and fossil fuel has caused an increase in the amount of the carbon dioxide in the atmosphere. ये सब है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सोर्स है। आपका बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक साइक्लिक पाथवे लिखा हुआ है, कंबशन ऑफ द पेट्रोल एंड ये सब डीजल जो है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। एक फोटोसिंथेटिक पाथवे है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग जनरली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, बट रेस्पिरेशन एक रिवर्स प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन ट्रैप होता है। सो प्लांट में दो ही प्रोसेस होता है, वो भी एक साइक्लिक पाथवे हो सकता है। अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नाउ आर्टिफिशियली जो कोल, पेट्रोलियम जब व्हीकल्स में यूज होता है, इंडस्ट्री से रिलीज होता है गैस, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। Nowadays the carbon cycle is disrupting. How can you explain it? Carbon cycle is disrupting nowadays. How can you explain it? Hello, how can you explain the carbon cycle is disrupting nowadays? Carbon cycle is disrupting nowadays. How can it is possible? Because you know, due to human interference, actual releasing of the carbon dioxide in the atmosphere is very maximum. As a result of this, carbon cycle is disrupting. As forest fire is one of them, deforestation is one of them, mining operation में क्या होता है, डायनामाइट देके हम लोग जो चट्टान को गिराते हैं और बोम्बार्डिंग, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी होता है, एरोप्लेन से भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये बहुत सारा सोर्सेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है। बट एज यू नो, द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है और अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कम हो रहा है। क्यों ना, कार्बन डाइऑक्साइड इतना, ह्यूमन बींग्स वी आर वेरी मच सेल्फिश फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट। एवरी मोमेंट वी आर डिस्टर्बिंग द natural resources. As a result of this, the amount of the carbon dioxide increasing in the atmosphere day by day. Okay, now you have to study regarding phosphorus cycle. हाँ सर ओजोन लेयर का सर कुछ बता सकते हैं कि सर वो अगर ओजोन लेयर तो उस चैप्टर में, हाँ ओजोन लेयर जो है उस चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था। एक्चुअली स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होता है ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर हम लोग आप जूनियर क्लास में पढ़े, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होता है जिसका नाम ओजोन होता है, और ओजोन का जो लेयर nowadays रिलीजिंग ऑफ सम गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, पर्टिकुलरली CFC, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये सब गैस जो एमिशन होता है, एमिशन होकर क्या कर रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन का जो ओजोन गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और उसमें थिनिंग ऑफ दिस ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जब थिनिंग होता है तो डायरेक्ट सनरेज प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर सनरेज को। बट ये सनरेज क्या होता है ना, जब ओजोन लेयर थिनिंग हो जाता है तो सनरेज डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट मींस वी नो सनरेज में अल्ट्रावायलेट रेज है, दैट मींस अल्फा, बीटा, गामा रेज, ये सब जो है सो मेनी हार्मफुल रेज आर प्रेजेंट इन द सनलाइट। जब थिनिंग हो गया, आराम से वो क्या हो रहा है ना, अर्थ सरफेस में आ रहा है। उसमें से क्या हो रहा है ना, कॉजिंग कैंसर और अदर
दैट मीन्स सनबर्न, सनस्ट्रोक, ये सब डिजीज हो रहा है, बीमारी हो रहा है। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन ये ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन बींग्स अगर मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर रिलीज नहीं करता है एटमॉस्फेयर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है बताओ तो? हेलो? एसी, हाँ रेफ्रिजरेटर। हाँ, और रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल्स जो एरोजेट प्लेन से रिलीज होता है, एरोसॉल्स, ठीक है, ये सब सोर्स होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इवन जो हम लोग जो परफ्यूम यूज करते हैं उसमें भी सीएफसी है कि नहीं? यस सर। देखोगे उस जो कंटेनर है परफ्यूम का, जो स्प्रे मारते हैं उसमें नीचे लिखा हुआ कंटेन सीएफसी, डेंजर लिखा हुआ रहता है, फिर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू आवर हेल्थ लिखा हुआ रहता है ना सिगरेट का पैकेट में, फिर भी तो लोग ले रहा है कि नहीं है? तो लिखा हुआ यस सर। रहता है, गवर्नमेंट का रूल्स है, बट हम लोग उसको कहाँ हम लोग छोड़ देते हैं। रेफ्रिजरेटर से निकलता है सीएफसी, किसी का घर में रेफ्रिजरेशन नहीं है तो ऐसा घर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन we the human beings for our personal benefit each and every moment we are exploiting the nature. As a result of this so many unwanted activities environment में हो रहा है, जिसमें डिसबैलेंस हो रहा है, गैसियस डिसबैलेंस, इम्बैलेंस हो रहा है। दैट मीन्स इसके बाद आप लोगों का जो सन रेज डायरेक्ट आ रहा है ओजोन डिप्लीशन के चलते, उसके क्या हो रहा है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, हीटिंग ऑफ द अर्थ हो रहा है। तो पिछले चैप्टर में था जो डायरेक्ट सन रेज आ रहा था, हीटिंग ऑफ द टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीटिंग ऑफ द दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हीटिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू एक्सेस रिलीजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो अर्थ हीटिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का इल इफेक्ट क्या है बताओ तो? हेलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसका इल इफेक्ट क्या है? मेल्टिंग ऑफ द आइस इन द पोलर रीजन, याद रहेगा ना? हेलो? ओके सर। हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में मेल्टिंग, आइस मेल्टिंग होगा तो क्या होगा, कोस्टल एरिया में जो है उसमें से लेयर बढ़ जाएगा कि ओशन का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो नेचुरली द सिटीज व्हिच आर सिचुएटेड नियर द कोस्टल एरिया दे आर इन डेंजर कंडीशन। जैसे बॉम्बे हो गया हमारा देश में, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब शहर क्या है, दैट मीन्स नियर द ओशन, ओशन में होता है। तो क्या होगा, जो मेल्टिंग ऑफ द आइस पोलर रीजन में पिघल के जो हो रहा है उसका लेयर तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो पानी जब लेयर, ओशन का लेयर बढ़ जाएगा तब क्या होगा, नेचुरली वाटर क्या होगा, हाई टाइड का समय में वो नेचुरली वो पानी अंदर आ जाएगा शहर का अंदर में, ठीक है। अब साइंटिस्ट दे आर प्रेडिक्टिंग विद इन 100 ईयर, विद इन 100 साल का अंदर में बहुत सारा जो कोस्टल एरिया में जो सिटीज है वो सिटीज ये होगा, मतलब समुद्र का पानी उसमें आराम से आ जाएगा एकदम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ओजोन होल क्या होता है बताओ तो? ओजोन होल याद है, फिजिक्स में भी पढ़े हो आप लोग? ओजोन होल, ओजोन होल क्या होता है, जो ओजोन लेयर जो थिनिंग होता है, लेयर जो थिन होकर एकदम कम, दैट मीन्स पतला होता है, दैट इज ऑकर्स इन दैट मीन्स अंटार्कटिक रीजन। अंटार्कटिक रीजन में उसका थिनिंग सबसे ज्यादा है, तब क्या होता है, उसको ओजोन होल बोलते हैं। और उसी कारण से मेल्टिंग ऑफ द आइस इन द पोलर रीजन, उसमें सबसे ज्यादा थिनिंग होता है, सबसे ज्यादा उस अंटार्कटिक रीजन में थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, और इसी कारण से वहां हीटिंग ऑफ द अर्थ हो रहा है, सनलाइट डायरेक्ट एंट्री हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ द आइस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फॉस्फोरस साइकिल। इस चैप्टर में फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल में क्या हो सकता है, फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल में फॉस्फोरस का कहाँ हम लोग का इसमें यूटिलिटी है? इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होता है, हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं, उसमें फॉस्फोरस है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फोरस होता है। न्यूक्लिक एसिड में सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फोरस सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में भी यूज होता है।
तो ये फास्फोरस का यूटिलिटी है। इट रिक्वायर्स द मेकिंग ऑफ द सेल बोन्स, हम लोग का जो हड्डी है, अब बहुत सारे एनिमल्स का ऊपर का जो कवरिंग होता है इसको सेल बोलते हैं, SHELL। इट इज मेड अप ऑफ फास्फोरस। फॉस्फेट से मेड अप होता है कि नहीं? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, फास्फोरस से मेड अप होता है, ठीक है। तो नेचुरली इसमें क्या है ना, सेलुलर जो है बोन्स, टीथ बनता है। हम लोग जानते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये दोनों जो एलिमेंट है, ये दोनों हम लोग का बॉडी में बहुत जरूरी है। अच्छा, रॉक आर द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फास्फोरस। जो रॉक सरफेस होता है वो नेचुरल रिजर्वायर, नेचुरल रिजर्वायर, रॉक आर द नेचुरल रिजर्वायर। रॉक सरफेस को फास्फोरस का रिजर्वायर मानते हैं। ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक केमिकल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वो रॉक सरफेस धीरे धीरे छोटा होगा, ओके, छोटा छोटा बोल्डर में आ जाएगा। माइन्यूट अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट डिसॉल्व इन द सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन में भी फॉस्फेट पाया जाता है। एंड आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट थ्रू द रूट्स, रूट्स प्लांट से ऑब्जर्व करता है इसको, ठीक है। उसके बाद herbivores and carnivores obtain this element from the plant directly or indirectly. Herbivores and carnivores obtain the plant directly or indirectly. The waste product of the dead organism decomposed when and phosphate solubilizing bacteria and in turn release phosphorus. चलिए कैसे कैसे, बहुत छोटा ही है। मान लीजिए हम लोग का बॉडी बोन से और सेल से बना हुआ है एंड मिक्स अप विद इन द सॉइल, तो सॉइल में फास्फोरस जाता भी है। जब हम लोग का डेड बॉडी, हड्डी उड्डी सब मिक्स अप होता है, ह्यूमन बींग्स को तो जलाया जाता है, बट अदर एनिमल्स व्हेनेवर मिक्स अप इन द सॉइल, तो फॉस्फेट उसमें जो बोन में जो फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट तो सॉइल में गया, और सॉइल में अगर जाता है तो प्लांट उसको नेचुरली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये साइक्लिक पाथवे। तो फास्फोरस, रॉक इज द मेन रिजर्वायर, और रॉक का जो वेदरिंग होता है वो भी होके सॉइल में आता है, और सॉइल से डायरेक्ट प्लांट ये कर। समुद्र में बहुत सारा एनिमल्स है, वो एनिमल्स क्या है ना, उसका बॉडी का कवरिंग सेल से होता है, तो वहां भी समुद्र में पाया जाता है बहुत सारा सेल्स, SHELL, तो वो भी एक सोर्स होता है फास्फोरस का रिजर्वायर, ठीक है। फास्फोरस साइकिल ये हो गया। और एक होता है आपका अच्छा, और तो आपका सिलेबस में नहीं है कोई साइकिल, खाली कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल है, ठीक है, फास्फोरस साइकिल। नेक्स्ट वन, इकोसिस्टम सर्विस। इस चैप्टर में एक टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस, द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम आर कलेक्टिवली नोन एज इकोसिस्टम सर्विस। प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विस। एक इकोसिस्टम से कौन कौन चीज पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। फॉरेस्ट में तो सब कुछ होता है। फॉरेस्ट से हम लोग क्या क्या मिलता है ये हमको पहले देखना है। फॉरेस्ट से हम लोगों को मिलता है, नंबर 1 है प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, ये हो गया। क्यों ना, फॉरेस्ट एक ये है जहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है बाय मींस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, सेकंड वन, माइग्रेट ड्रॉट एंड फ्लड्स। अगर ड्रॉट आता है और फ्लड आता है तो फॉरेस्ट बहुत तरह से हेल्प करता है। क्यों ना, फ्लड आता है तो जनरली पानी वहां फॉरेस्ट के अंदर जाता है, तो नेचुरली वहां का जो रूट है उसको एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए कहा जाता है फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड। फॉरेस्ट कैसे कंट्रोल फ्लड को करेगा? अगर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है तो पानी, फ्लड का पानी, अगर बाढ़ का पानी अगर अंदर घुस जाता है तो प्लांट का जो रूट है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसपिरेशन का थ्रू से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल को कंट्रोल करता है, साइकिल द न्यूट्रिएंट्स ये होता है। अच्छा, जनरेट फर्टाइल सॉइल, ये भी फॉरेस्ट का काम है, जनरेट फर्टाइल सॉइल। पेस्चर लैंड मतलब ग्रेजिंग लैंड बनाता है। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को दैट मीन्स वहाँ सरवाइव करने के लिए वो शेल्टर देता है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी,
Biodiversity means diversity among the plants and animals is called biodiversity. ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है और फॉरेस्ट ही मेंटेन करता है। फॉरेस्ट का अंदर में जाके नेचुरली कोई डैमेज को भी कम करता है। जो डेंस फॉरेस्ट होता है उसमें तो कोई जाता ही नहीं है। सो नेचुरली इट इज द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन, पॉलिनेट द क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स का सराउंडिंग में फॉरेस्ट है तो क्रॉप्स अच्छा होता है। क्या कारण है उसमें? क्यों ना फॉरेस्ट में जितना इंसेक्ट है सब आता है इसमें क्रॉप्स में आके, इसमें क्रॉप प्लांट में पॉलिनेशन में हेल्प करता है और फर्टाइल क्रॉप्स बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर द कार्बन स्टोरेज साइट फॉर द कार्बन। जितना सारा प्लांट, पेड़ पौधा और भी एनिमल, ये बॉडी सोर्स ऑफ कार्बन होता है। नेक्स्ट वन, पॉलिनेट क्रॉप्स। ये तो है डिस्कस किया। प्रोवाइड स्टोरेज, प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये भी एक फॉरेस्ट का फंक्शन है। कैसे? आप जितना सारा फॉरेस्ट का पैचेस है उसका चारों तरफ से देखिए, लोग घूमने के लिए जाता है। क्यों जाता है? फ्रेश एयर मिलेगा, एस्थेटिक वैल्यू, खूबसूरती है, उस ब्यूटिफिकेशन होता है, इसी कारण से लोग घूमने के लिए जाता है। जितना सारा मेडिटेशन का होता है, आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट होता है, देखिएगा नियर द फॉरेस्ट पैचेस। ठीक है, वहां एक फ्रेश एयर मिलता है, मेंटल स्ट्रॉन्ग रखता है, मेंटल को ठीक से रखता है। ठीक है। अच्छा, अदर देन दिस, फॉरेस्ट से और क्या क्या मिलता है? मेडिसिन होता है फॉरेस्ट से। हेलो, यस सर, मेडिसिन। मेडिसिन तो होता है। हाँ, मेडिसिन मिलता है। बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट्स फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो एक मेडिसिन, सोर्स ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, जनरली मेन सोर्स इज फॉरेस्ट। और क्या है ना, उसमें से टिम्बर यील्डिंग प्लांट मिलता है कि नहीं? टिम्बर यील्डिंग प्लांट, टिम्बर मीन्स बड़ा बड़ा लॉग जिसमें से फर्नीचर बन सकता है और हिली रीजन में मकान भी बन सकता है, वो एक सोर्स है। ठीक है। ट्राइबल पीपल दे कैन कलेक्ट द लीव्स ऑफ द प्लांट। जैसे सलपत्ता, आप सलपत्ता तो बहुत अभी अब नहीं है, अभी तो थर्मोकोल का हो गया, फाइबर का हो गया आपका थाली। जो एक समय जो थाली बनता था जिसमें शादी इसमें यूज होता था, वो सलपत्ता का ही थाली यूज होता था। अभी तो हम लोग मॉडर्न हो गया, वो सलपत्ता यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखे हो कि नहीं सलपत्ता का थाली? यस सर, यस सर, देखे है ना। वो कहाँ से? फॉरेस्ट से। क्यों ना आपका झारखंड में कुछ पोर्शन जो आपका इधर जमुई तरफ से जो है, कुछ हिली रीजन है बिहार का, उसमें फॉरेस्ट पैचेस है, उसमें साल प्लांट बहुत है। उस लीफ को कलेक्ट करके इसमें एक इंडस्ट्री है, इसको ये करता है। ये हो गया। उसके बाद हनी कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ हनी, कलेक्शन ऑफ हनी। शहद जो प्रिपरेशन कहाँ से? जंगल से ना होता है। ये भी एक इंडस्ट्री फॉरेस्ट से हम लोग को मिलता है कि नहीं? तो फॉरेस्ट से क्या क्या नहीं मिलता है? अच्छा, और बहुत सारा चीज है। हाँ, मेडिसिन। अगर मान लीजिए फॉरेस्ट में स्नेक होता है, स्नेक होता है कि नहीं? बहुत सारा जो है साइंटिस्ट फॉरेस्ट एरिया से स्नेक से एक वेनम मिलता है जो ड्रग्स का हिसाब से यूज होता है। मेडिसिन, सांप काटने के लिए जो होता है उसमें यूज होता है। वाइल्ड लाइफ से उसको कलेक्ट, स्नेक से ही कलेक्ट किया जाता है, मेडिसिन बनता है। स्नेक बाइट जिसको है उसको इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये मेडिसिन फॉरेस्ट से भी हुआ होता है। फॉरेस्ट से दैट मीन्स जो बेत का, जो हम लोग स्कूल से जाते जाते जो देखते हैं, इसमें आरपीएस के आगे पहले या आगे लेफ्ट साइड में देखते हैं बेत का जो कुर्सी चेयर ये सब होता है, कहाँ से आता है? हेलो, देखे हो ना रोड साइड में? लकड़ी का थोड़ी नहीं है, लकड़ी का नहीं, उसको बोलते हैं बेत। ठीक है, वो बेत कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से। ठीक है ना। तो फॉरेस्ट से हम लोगों को इतना सारा चीज मिलता है जो अनलिमिटेड है। ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट का डेफिनेशन, फॉरेस्ट मतलब एक चीज है, हम लोग
सोचता है जो खाली पेड़ पौधा है, बट बायोलॉजिकली फॉरेस्ट मीन्स दैट प्लांट एंड एनिमल्स बोथ। किसी फॉरेस्ट बोलते हैं तो प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल थिंग्स जो फॉरेस्ट में पाया जाता है, जंगल में पाया, उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट नॉट ओनली इंडिकेट द प्लांट, वाइल्ड लाइफ को भी उसमें ये किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी बहुत, देखिए हम लोग फॉरेस्ट से, जैसे एक पार्ट है बायोलॉजी का, एक एथनोबॉटनी का पार्ट है, एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी मींस फॉरेस्ट का साथ बॉटनी का क्या रिलेशनशिप है, रिसर्च पर्पस में यूज होता है। क्यों ना, कौन कौन मेडिसिनल प्लांट कौन ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो ट्राइबल पीपल पता, फॉरेस्ट एरिया में कौन लोग रहता है, ट्राइबल पीपल, द ट्राइबल पीपल नो अबाउट द इसका फंक्शन क्या, कौन प्लांट से कौन सा मेडिसिन होता है, किस पर्पस में यूज होता है, वो उसको आयुर्वेदिक डिवीजन में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में हम लोग जैसे मान लीजिए नीम टूथपेस्ट कहाँ का प्रोडक्ट है? हेलो, नीम टूथपेस्ट ये फॉरेस्ट का ही प्रोडक्ट है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं एथनोबॉटनिकल प्रोडक्ट, नीम टूथपेस्ट। तो मान लीजिए नीम का जो अभी खेती बाड़ी में दिया जाता है, नीम फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, अभी बोल रहा है जो केमिकल पेस्टिसाइड खेती में नहीं देना है, क्यों ना उसमें ये हो जाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, या बहुत सारा इल इफेक्ट होगा, इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। नाउअडेज द पेस्टिसाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट लाइक नीम प्लांट। ठीक है, तो मतलब आप फॉरेस्ट से बहुत सारा चीज मिलता है। बैम्बोस फॉरेस्ट से मिलता है। बैम्बो का तो यूटिलिटी आप जानते हैं, क्या क्या पर्पस में यूज होता है। तो अनलिमिटेड जो फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को सब ये करना है। तो अगले दिन हम लोग मंडे को जो क्लास होगा सबको बोल दीजिएगा, स्कूल से क्लास होगा, और वो व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे हम लोग, उसमें से होगा, अच्छे तरह से रिवीजन होगा। इतना दिन करोगे क्या? अभी एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है कब होगा, अभी जनवरी आधा है प्लस फरवरी, मान लीजिए मार्च अप्रैल में होगा तो ठीक है। कोरोना का सिचुएशन को देखते हुए आपको चीज सरकार गवर्नमेंट उसको डिसीजन लेंगे, बट इतना दिन आप करोगे क्या? क्लास में अटेंड करो, क्लास में अटेंड करने के बाद कुछ तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल, कुछ तो पढ़ाई होगा। घर में बैठ के दिन भर आप रहोगे तो कोई ये नहीं है, मतलब उसका मतलब ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, सबको बोल दीजिए मंडे से सब क्लास अटेंड करे। ठीक है, आज टाइम हो गया होगा, हाँ 12:41 हो गया। ठीक है, तो आज छोड़ देते हैं। ठीक है, लेट अस कंक्लूड। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर कौन सा चैप्टर रिवीजन करवा रहे हैं? कल 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 हो जाएगा ये, इस इकोसिस्टम से रिलेटेड, पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, हाँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये खाली बचा हुआ है, इसको खत्म करके मैं उसमें जाएंगे। दैट मीन्स वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है, उस चैप्टर जो टर्म 2 का जो चैप्टर पहला चैप्टर है उस जाएंगे। ठीक है ना, यस सर। ये पीछे से मैं जा रहा हूँ इकोसिस्टम वाला, ये सब चैप्टर स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है, इस कारण से, हाँ ठीक है, ओके। यस ओके सर, थैंक यू सर।